दिल्ली रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक क्रिकेट टीम के कप्तान से की है और केंद्र सरकार के कामकाज के तरीके की तुलना क्रिकेट टीम से की है। उन्होंने पीएम मोदी को कप्तान बताया है। जयशंकर ने कहा कि सुबह 6 बजे से ही नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जो देर रात तक चलती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने गेंदबाजों यानी कि मंत्रिमंडल से विकेट लेने की उम्मीद करते हुए कुछ हद तक आजादी दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की कड़े फैसले लेने की क्षमता तब भी दिखी थी जब भारत ने कोनी प्रकोप के बाद लॉकडाउन की घोषणा करने, उत्पादन को बढ़ाने, टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने और टीकों की जरूरत वाले देशों की मदद किया था। जयशंकर ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तो उस वक्त इसके करीब 50 सदस्य थे। आज इसके 4 गुना ज्यादा सदस्य देश हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक बात है कि संयुक्त राष्ट्र पुराने ढर्रे के आधार पर नहीं चल सकता। गुरुवार को इस कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। जयशंकर ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर सधे हुए शब्दों में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की खामियों को उजागर किया और आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र आज भी पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही संचालित हो रहा है। पुराने ढर्रे के आधार पर नहीं चल सकता संयुक्त राष्ट्र। जयशंकर ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तो उस वक्त इसके करीब 50 सदस्य थे। आज इसके 4 गुना ज्यादा सदस्य देश हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक बात है कि संयुक्त राष्ट्र पुराने ढर्रे के आधार पर नहीं चल सकता। अगर पिछले 5 वर्षों को देखें तो कई बड़े मुद्दे हैं जिनका हम बहुपक्षीय समाधान नहीं निकाल सके हैं, नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तभी सुधार की मांग उठ रही है। कई मामलों में नियमों के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, लेकिन तथ्य ये है कि वैश्विक व्यापार के नियमों में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और हम ये भी जानते हैं कि कैसे देश अपने फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मित्सोताकिस, एक्सेलेंसीज, डियर फ्रेंड्स, इट्स माय प्रिविलेज to give the vote of thanks that will conclude the Raisina Dialogue's inaugural event this evening. First and foremost, we thank the chief guest, the Prime Minister of Greece and his wife, for joining us today. Our collective appreciation to Prime Minister Mitsotakis for what I'm confident all of you will agree was a truly inspirational and thought-provoking address. His message of democracies that deliver resonates strongly, particularly now, particularly here. Prime Minister Modi's presence amongst us, as always, is a reminder of India's growing engagement with the world, especially in the last decade. He has shown us why it is as important to listen and reflect as it is to articulate and express. This event takes place at the end of a day which has seen the intensification of the strategic partnership between India and Greece established during Prime Minister Modi's visit in 2023. As two civilizational states, our countries have a particular responsibility to contribute to the evolution of the contemporary global order. We both naturally tend to take a long view of challenges and a considered one of opportunities. In the flow of history, connectivity has always played a crucial role. It is only to be expected that the talks between the two prime ministers today focused on enhancing the linkage between two global economic centers, India and Europe. The IMEC corridor, as Prime Minister Mitsotakis pointed out, holds particular importance in this regard. As India deepens its footprint abroad, Greece has emerged as a favorable destination. Our pharmaceutical industry, our agro-business and aviation are already established there, and the Prime Minister in his address mentioned growing Greek investment and interest in India. We expect that a mobility agreement will bring us even closer. Raisina is good for business as well. Ladies and gentlemen,
India's growing interest in the Mediterranean region is an important facet of our steady rise. The India-Greece partnership can surely serve as an anchor. Raisina Dialogue, as a made-in-India version of a global public square, has become what it is due to all of you. I thank you all for that. Please keep coming, please keep talking, please keep contributing. To Team Raisina and Team MEA, a special word of acknowledgement and encouragement. You have made all this possible. Please remain ambitious and keep challenging yourself even as you challenge others. Finally, let me recognize the Raisina Chronicles as we near the first decade. It captures what we have achieved, but more importantly, indicates the promise ahead. Once again, thank you all and a very good evening. पश्चिम बंगाल विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुदीप मजूमदार कहते हैं, विहिप ने एक रिट याचिका दायर की थी। विहिप ने अदालत के सामने आरोप लगाया है कि शेरनी का नाम सीता ने उन्हें नाराज कर दिया है। उन्होंने अदालत के सामने निवेदन किया कि सीता नाम हटा दिया जाना चाहिए और किसी भी जानवर का नाम धार्मिक देवता के नाम पर नहीं होना चाहिए। सुनवाई हुई। इस बात को लेकर भ्रम है कि क्या शेरनी का नाम वास्तव में रखा गया था या यदि शेर के लिए इस्तेमाल किया गया नाम मीडिया का निर्माण है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य को कल दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट दर्ज करने दे और उसके बाद अदालत इस पर आगे विचार करेगी। Today the writ application that was filed by Vishwa Hindu Parishad, as you can see, I have with me Mr. Anup Mandal, our North Bengal organizing secretary, and Mr. Lakshman Bansal, the North Bengal secretary of VHP. VHP has alleged before the court that naming a lioness with the name of Sita has offended them, and they had read before the honorable court that the name Sita be deleted and no animal should be named after a religious deity. Today the hearing took place, and since hearing the state, there is a confusion that whether at all the lions has been named. Whether the name that has been used against the lion is a creature of the media, so the court has said let the state file a report by tomorrow, 2 p.m. tomorrow, and thereafter the court will consider it. जम्मू और कश्मीर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दौरान प्रतिभागियों को स्कीइंग का आनंद लेते हुए ये जम्मू कश्मीर गुलमर्ग का नजारा है। एआई रिपोर्ट ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4वें संस्करण पर स्की और स्नोबोर्ड इंडिया की तदर्थ समिति के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य शिवा केशवन से जब बात की तो वो कहते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स इवेंट भारत में खेल विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये हमारे एथलीटों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। सुविधाओं को देखकर मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक संस्करण पिछले एक से बेहतर है और यह संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अब तक का सबसे अच्छा संस्करण है। यहाँ समय प्रणाली और पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आ रहे हैं। मुख्य प्रतिभागी पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन सेना भी है और आईटीबीपी भी बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये वास्तव में राष्ट्रीय महत्व की एक घटना है। जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जैसे आपने अभी कहा, ये जो गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट है ये वर्ल्ड के प्रॉब्ली हाईएस्ट स्की रिजॉर्ट है और जो नेचुरल कंडीशंस यहाँ पर है इसके बराबर वर्ल्ड के बहुत ही कम ऐसे जगह होंगे जो इसका मुकाबला कर सकते हैं। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इवेंट है ये हमारे स्पोर्ट डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि एक लॉन्च पैड है हमारे एथलीट्स के लिए जो अच्छी अच्छी सुविधाएं पाएं, अच्छे अच्छे कंडीशंस पाएं और हमारे देश को फिर इंटरनेशनल तौर पर रिप्रेजेंट कर पाएं। तो इसका जो इवेंट है ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्री है तो उनका ये पर्सनल इनिशिएटिव है जिससे हमें इतने सारे अभी सुविधाएं मिल रही हैं और ये 4th एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और फैसिलिटीज देख के मैं कह सकता हूं कि हर एक एडिशन पिछले एडिशन से बेहतर रही है एंड दिस एडिशन इज बाय फार द बेस्ट एडिशन। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ पर टाइमिंग सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोर्सेज और जो जितने इवेंट्स अभी करा रहे हैं यहाँ पर ये एकदम हाई लेवल के इवेंट्स हैं जो बेस्ट एथलीट्स देश भर से आके यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मेन पार्टिसिपेशन यहाँ पर हिल स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, बट ऑल्सो आर्मी, आईटीबीपी।
बड़ी संख्या में आए हैं यहाँ पर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, JNK तो ऑफ कोर्स है ही है। सो दिस इज ट्रूली इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और इस तरीके के इवेंट्स हमारे एथलीट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी में वो लोग एक अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन पा सकते हैं, और जो लोकल एरिया के लिए यूजिंग स्पोर्ट्स एज अ बेस टूरिज्म और इकोनॉमिक वेलबींग यहाँ एरिया के लिए आए, तो ये भी मकसद है इस इवेंट का। गुलमर्ग JNK के एक और प्रतिभागी जुनैद कहते हैं, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण है और बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। देश भर के प्रतिभागी भाग लेने और आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। ये क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने में मदद करता है। गुलमर्ग स्कीइंग के लिए सबसे अच्छा गंतव्य है। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है यहाँ पे, खेलो इंडिया पिछले 3-4 साल से हो रहा है। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें से ऑल ओवर इंडिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट्स आते हैं, यहाँ पर एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। आज यहाँ पर नॉर्डिक का ये इवेंट हो रहा है, कल एल्पाइन हो रहा है ऊपर गुंगडोरी में। इससे टूरिज्म भी डेवलप होता है, और गुलमर्ग का नाम वैसे भी मशहूर है स्कीइंग के लिए। ये बहुत बड़ी स्की डेस्टिनेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर लोग आते हैं स्कीइंग के लिए, फॉरेनर्स आते हैं, हेली स्की होती है, स्नोबोर्डिंग होती है, और बैक कंट्री के लिए भी बहुत वास्ट एरिया है यहाँ पे। अलग ही माहौल बदलता है जब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, एक अलग मैसेज बाहर जाती है कि गुलमर्ग की एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जी, गुलमर्ग एक बार तो बंदा आना ही आना चाहिए, और स्कीइंग के लिए ये वेरी बेस्ट डेस्टिनेशन है, और इवन के समर्स में भी ये बहुत अच्छा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।